A very good evening and welcome to all our esteemed investors. Welcome to this Saturday Schools session. On behalf of NJ India Invest and the UTI Asset Management Company, I, Divyesh Kakkad, welcome you all for today's session. With us is an eminent and a speaker, Mr. Peshatan Dastur, who will be taking today's presentation. तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले एक उनका ब्रीफ मैं आपको परिचय दे देता हूं. Mr. Prashanthan Dastur is the group president, head sales at UTI Asset Management Company. He holds double post graduation qualification, Masters of Commerce degree from the University of Mumbai and Master in Business Administration degree from Xavier Institute Management. He also holds the Claritas Investment Certificate from CFA Institute USA. Mr. Dastur joined UTI AMC on 6th May 2021 and has over 27 years of valuable experience in financial service sector across banking and mutual fund. Before joining UTI Asset Management Company, he spent 13 years at Franklin Templeton Asset Management India Private Limited, where he was head sales since April 2014. Prior to that, he has spent 12 years in various positions across ING Bank NV, ING Private Banking, and also served as head institutional sales at ING Investment Management India Private Limited. So, without taking much time, I welcome our guest speaker to take forward the presentation. Pesi sir, you are welcome. Thank you very much, Mr. Kakkar, and a very good evening to everybody on the call. Someone can just confirm to me that I am absolutely clearly visible and audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Thank you very much. Then, a very good evening again to all the participants, and a big thank you for joining us this evening. I know it is a Saturday evening, and I know that it's a fairly busy time from a family point of view and also from an Olympics point of view. So, I don't know if you're following, but our javelin thrower is right now competing and could possibly be a gold medal winner. But on that happy note, we'll come to the subject of discussion today. And Mr. Kakkar, again, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतना प्यारा और बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया. सिर्फ एक ही चीज मैं उसमें जोड़ूंगा कि मेरा नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. लोग मुझे पेसी के नाम से जानते हैं, पेशोतन के बजाय. और पेसी को भी आसान करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि पेप्सी से आप दूसरा पी हटा दीजिए, जो रह जाता है, उससे मेरा नाम आपको बरोबर स्पेलिंग और नाम भी याद आ जाएगा. बट कमिंग टू टुडेज मेन एरिया ऑफ डिस्कशन, द पॉइंट दैट वी आर हियर फॉर is to talk about some mantras of investing. So, I will be talking to you through a presentation, and if someone can confirm that the presentation is available on the screen now. Yes, sir. It's a full screen. Okay. Yes, sir. Okay. Great, great. तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई मार्केट के ऊपर ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही हकीकत बयान करना चाहूंगा कि भाई मार्केट हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है और मार्केट को प्रिडिक्ट करना डॉन की तरह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मार्केट को पकड़ना. एंड इफ दैट इज द केस, देन आपको एक ही चीज पे ध्यान देनी चाहिए कि आपके हाथ में, आपके पकड़ में क्या है. और जो हम सब निवेश करते हैं, मेरा सवाल हमेशा एक ही रहता है सब निवेशक से कि आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो. छोड़िए ना ये सब. आपका तनख्वाह आती है, आमदनी होती है, पैसा लो, मजा करो. निवेश क्यों करते हैं हम लोग? व्हाई डू वी इन्वेस्ट? मैं आपको मेरा जवाब देता हूं कि फॉर मी द रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इज हियर ऑन द स्क्रीन. दिस इज माय फैमिली, एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट टू मी इज देम. क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है और उनका हक है एक बेहतर जिंदगी का, एंड वो जिंदगी उनको देने के लिए मुझे निवेश करना
बहुत जरूरी है। और जब ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे मैं आता हूं, and again I will keep talking to you through my life examples, not from theoretical class. I will give you absolute practical thinking as far as investments go. When I look at investments and I keep wondering what I should be worried about, मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी में मेरे पास नौकरी है, पिछले 27 साल से मैं नौकरी करते आ रहा हूं, मेरी तनख्वाह मिलती है हर महीने, मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है मेरे सर पे, शादी की जिम्मेदारी है, उनको सेटल करना है, मेरा घर का ईएमआई है, उसे संभालना है मुझे, मेरी बीवी है, उसकी जरूरतें एक है बट उसकी ख्वाहिश है अनेक है, एंड उनको भी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये अगर सब चीज कांस्टेंट है मेरी जिंदगी में, एक ही चीज बदलते रहती है और वो है मार्केट। और फोकस मेरा और आपका कहां पर होना चाहिए is what is most important to me. And that is why in investments, I am a firm believer you have to first learn to be selfish. सबसे पहले आप अपने आप को, आपकी जरूरतें, आपकी फैमिली, उसको रखिए before the markets. Never let the markets determine your investment. Let your needs and your wishes for your family determine the need of how you will conduct your investments. इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ही सिंपल विषय। आप हर महीने थोड़ा पैसा बचाइए, उसको वक्त दीजिए, वक्त के साथ, ब्याज के साथ, कंपाउंडिंग के साथ पैसा बनता है। इट इज सच अ सिंपल मंत्रा, ये सब जानते हैं, ये जेनरेशन से आते जा रहा है। मेरी दादी ने भी मुझे सिखाया था, मेरी नानी ने भी मुझे सिखाया था कि बेटा तेरे पगार में से थोड़ा पैसा साइड पे रखना, वो टाइम पे भले पीपीएफ हो, एफडी हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, बट द प्रिंसिपल देन एंड टुडे इज एग्जैक्टली द सेम। The only difference between a successful investor and not so successful investor is the discipline, कि क्या आप ये कर पाते हो या नहीं। एंड ये जर्नी में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके ये चीज, बहुत सारी चीजें हैं, बट इन सब में से मैं 4 पॉइंट पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि भाई आपके कंट्रोल में क्या है और वो जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर आपको ध्यान कैसे देना चाहिए। सो सबसे पहला विषय है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन इज नथिंग बट यू पुटिंग मनी इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। लोग अक्सर आके पूछेंगे कि भाई इक्विटी में पैसा लगाऊं, मैं बोलता हूं बिल्कुल। मैं डेट में लगाऊं, बिल्कुल लगाइए। पर भैया सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा रखना चाहिए, बिल्कुल। घर लेना चाहिए, हाँ जी। क्रिप्टो करेंसी करनी चाहिए, आपको समझ में आता है तो बिल्कुल कीजिए। कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए। हर एक चीज आपके लिए सही है, बट एक मायने में। हम निवेश करने के वक्त पे अनफॉर्चुनेटली एक ही चीज देखते जाते हैं कि भाई कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, हम पैसा और हमारा आकर्षण वही दिशा में चलते जाता है। दैट इज द रॉन्ग थिंग। और मैं आपको बताऊंगा कि विनर, जो जीतने वाले होते हैं, वो कैसे रोटेट होते हैं। आपके सामने पिछले 16 साल का ये चार्ट है। आप देखोगे 2005, 6, 7 में इक्विटी ने बहुत बढ़िया किया था। 8, 9 में गोल्ड वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। 10 it was equity again. 11, 12 it was gold again. In 13 it was debt and CPI, which is nothing but consumer price inflation, but you were best investing in debt at that point of time. In 17, 18, 19 again it is equity, and 20 it is again gold. अब आप मुझे पूछोगे कि 21, 22, 23 में क्या होगा, मुझे पता नहीं है,
बट मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि ये चार्ट में से एक आध तो जीत ही जाएगा। कौन सा जीतेगा, बाय व्हाट मार्जिन, यू डोंट नो। दूसरा, ये चार्ट में आप देखिए 2014-15 का उदाहरण लीजिए, जब इक्विटी 19% या 28% से बढ़त हुई थी, गोल्ड वो साल में 11% और 4% से गिरावट हुई थी। बट अगले साल में गोल्ड टॉप पे आया और इक्विटी नेगेटिव हुआ। एंड दैट इज व्हाट आई मीन टू से, विनर्स रोटेट। सो डोंट ट्राई टू चेस रिटर्न्स बाय सेइंग कि इक्विटी बहुत बढ़िया कर रहा है या अब गोल्ड बहुत बढ़िया कर रहा है। सब तोड़ के छोटे मायने में आपको हर चीज में निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनर्स विल रोटेट। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट एसेट क्लासेस ऑफ इक्विटी, गोल्ड, डेट, बट आप हर ये पूरे वर्ल्ड में अलग कंट्रीज का हिसाब रखोगे, you will realize that winners rotate across the world also. So in 2009-10, India was the best performing market. India gave a return of 95%, US gave a return of only 23%. But look at what happened in 2011. US gave a return of 21%, India gave a return of minus 25%. लुक एट 2018, 19 एंड 20। हमें लगा है कि अरे भाई इंडिया में भयंकर इक्विटी की रैली हुई है। आई एग्री विथ यू सर एंड मैडम, बट ऑल्सो इन अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डूइंग फार बेटर देन इंडिया इन द सेम ईयर्स जहां पर आपको लगा है कि इंडिया इज अ ग्रेट इक्विटी मार्केट। In 2019, as an example, US gave a return of 35%, while India gave a return only of 10%. And in 20, China was the best performing market with a 33% return. So the next piece of input I want to give is that you don't have to look at only equity or gold and debt, but within equity, you have to look beyond India, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश है जहां पर बढ़त और इक्विटी मार्केट डू इक्वली वेल और बेटर, एंड देयर ऑल्सो विनर्स रोटेट। ये सब्जेक्ट पे ये एक और सवाल निवेशक हमेशा पूछते हैं कि सर मुझे लार्ज कैप लेना चाहिए या मिड कैप लेना चाहिए। ये आपके सामने पिछले 11 साल का समरी है। 11 साल में 4 साल लार्ज कैप चले हैं, 4 साल स्मॉल कैप ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है और 3 साल मिड कैप ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है। अब आप मुझे बताइए कैसे आप अंतर जानोगे कि अगले 10 साल में आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में रहना चाहिए। द इंपॉर्टेंस इज कि भाई आप अपना रिस्क एपेटाइट समझिए, build a portfolio approach through diversification across asset classes, whether it is equity, gold, debt, or cash. Within that, look at global as well as India. And within equity, you have to have a balance of large cap, mid cap, and small cap because winners will rotate. कल का राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन नहीं बना था और अमिताभ बच्चन शाहरुख खान नहीं बना था और शाहरुख खान शायद रणवीर सिंह नहीं बन पाएगा। विनर्स विल रोटेट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एंड माइंड यू, ये आपके कंट्रोल में है, ये मार्केट के कंट्रोल पे नहीं है। ये आप डिसाइड कीजिए आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ कि आपको कितना पैसा कौन से सेगमेंट में लगाना है। आपको पोर्टफोलियो अप्रोच लेना चाहिए। डोंट लुक एट स्टॉक्स और जस्ट सिंपली सबसे बढ़िया रिटर्न कहां से आया, कल का शाहरुख खान कौन था, क्योंकि अगला शाहरुख खान वही रहेगा, वो जरूरी नहीं है। So the first point I want to make is asset allocation is extremely important. दूसरा सवाल जो अक्सर और हमेशा निवेशक पूछते रहेगा और वो है अब करूं या कब। टाइमिंग इज व्हाट मोस्ट इन्वेस्टर्स आर इन्फेक्चुएटेड बाय। अब निवेश करना चाहिए इक्विटी में या रुक जाना चाहिए। चलो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं
इंडियन इक्विटी मार्केट की। पिछले 25 साल में निफ्टी, सब लोग समझते हैं, पिछले 25 साल में निफ्टी ने 18 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया था। जब पॉजिटिव रिटर्न दिया था 3% से लेकर लगभग 75% तक का पॉजिटिव रिटर्न था। जब नेगेटिव हुआ था तो -1% से -52% तक नेगेटिव चला था पिछले 25 साल में। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं जान पाऊं कि अगले 25 साल में कौन से साल में ऊपर रहने वाला है और कौन से साल में नीचे, जिंदगी बहुत आसान होगी। जिस साल ऊपर जाने वाला है पैसा लगाओ, जिस साल नीचे जाने वाला है उसके पहले निकाल दो। बट आप कभी जिंदगी में ये प्रिडिक्ट, अगर आपका लक चला और तुक्का लग गया, एक बार दो बार कर पाओगे, बट इट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट। एंड लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक अबाउट द सेम, वही 25 साल के। 25 साल में अगर आपने निफ्टी में निवेश करके बैठे रहते, कुछ नहीं करते, तो आपका रिटर्न 11.3% का होता। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो लगभग 15 लाख रुपए बनते। बट बहुत सारे दिन थे जब मार्केट ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया और बहुत सारे दिन थे जब मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट आई। और वही सबसे बढ़िया 10 दिन और सबसे गिरावट में बड़े 10 दिन में गिनूं, और मैंने आपके लिए चार्ट पे लगाए हैं कौन से दिन थे वो। अगर वो सबसे बस बेस्ट 10 डेज आप अगर चूक जाओ, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कि अगर 25 साल में सोचिए आप, आपने बेस्ट 10 डेज चूक गए, योर रिटर्न बिकेम फ्रॉम 11.3% टू 7.6%। और 25 साल में आप अगर सबसे बढ़िया 40 दिन चूक गए, योर रिटर्न इज ऑलमोस्ट जीरो, योर रिटर्न बिकम्स 0.8%। अब सवाल यही है कि अगर आप अगले 25 साल में ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से सबसे बढ़िया 40 दिन होने वाले हैं, देन इट इज वेरी सिंपल। आप वो 40 दिन के पहले, एक दिन के पहले आप पैसा लगा दीजिए और एक दिन बाद निकाल दीजिए, क्योंकि ये हकीकत है। और आप देखोगे 18 मई 2009 एक दिन में मार्केट 17% ऊपर चढ़ा था। क्यों चढ़ा था? दिस वाज द टाइम that Manmohan Singh was re-elected as the prime minister and did not need the support of the left parties to form the government. But the worst 5 years for the equity markets were from 2009 to 2014. But the biggest gain in one day ever recorded was on 18th May 2009. Now you can miss, and हम अक्सर पूछेंगे कि भाई इलेक्शन आ रहा है, हमें निकल जाना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। ये आप देख सकते हो आपके सामने, ये बेस्ट डेज वर्स्ट डेज अगर आप चूक जाते हो, आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट क्या आता है। सो मेरा दूसरा प्रवचन यही रहेगा कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। Time in the market that you spend is what will determine whether you will retire rich or you will work even after retirement. You will never be able to predict the best days and the worst days. And that is why you have to go back to the simple mantra: invest regularly, give it time, allow the power of compounding to play out, and that is how you make return. The third area that I'd like to talk about is inflation. And everybody understands the concept of inflation. Inflation is nothing but कि चीजों के भाव में जो बढ़त होते रहती है, आपका अगर तनख्वाह या आमदनी उससे धीमे पेस से बढ़ता है, then you are going to lead a poorer lifestyle. एंड इन्फ्लेशन ने, ये जो आप हमारे स्क्रीन पे सिक्के देख रहे हो, इन्फ्लेशन ये सब सिक्के हड़प गया। You cannot buy anything in 5 paisa today. You cannot buy anything in 50 paisa today. Even if you go to buy a halls, it is now for 1 rupee. That is the cheapest item that you can buy in the country.
very few things you'll be able to buy at the currency is valid, but can you buy anything in any one single unit of this currency? The answer is no. The purchasing power of this part of the currency is over and gone. And हमेशा हमारे घर में और मेरे घर में तो बिल्कुल हर महीने ये चर्चा चलती है कि भाई चीजों की इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल की आमदनी, पेट्रोल का भाव 110 रुपया हो गया है, टमाटर के भाव 40 रुपए हो गए। मेरी बीवी आके मुझसे कंप्लेन करेगी कि भाई ये मैं हमारी जो घर में काम करने वाली लेडी है वो तनख्वाह में 1,000 रुपये की बढ़त मांग रही है। और हम हमेशा इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। द ट्रू इन्फ्लेशन, लेट मी टेल यू, is not in the price of tomatoes, is not in the price of petrol. The true inflation is actually in your lifestyle. कल की जो हमारी लग्जरीज थी आज हमारी जरूरतें हो गई है। The inflation is not in price of petrol going from 60 rupees to 110 rupees. The inflation is in the fact कि पहले आप 10 लाख की गाड़ी चलाते थे, आज आप 40 लाख की गाड़ी चलाते हो। पहले आप इंडिया में हॉलिडे करते थे, अब आप हर साल फॉरेन जाते हो हॉलिडे पे। पहले आप शायद HMT या टाइटन की घड़ी पहनते थे, अब आप शायद बल्गारी की घड़ी पहनते हो और लुई विटॉन या गुची का बैग लेके घूमते हो। और मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि ये सब चीजें बुरी है, ना 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 ना, ये सब चीजों की तो एंडलेस डिमांड है मेरे घर से मेरे बीवी की। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब ये खर्चे आप निवेश करने के बजाय करते हो कि आपने अपना SIP रोक दिया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। दैट इज द ट्रूली पेनफुल इन्फ्लेशन इन योर लाइफ। And if you can control lifestyle inflation, you will never worry about the price of petrol. The problem is not in the price of petrol, the problem is in the price of the car. Every time you want to upgrade your car, the new car, the price you are paying for that, that is lifestyle inflation. If that lifestyle inflation is coming at the cost of investment, then you have a serious problem in life. You will live like a rich man, but you will definitely not retire like a wealthy man. Please watch and manage your lifestyle inflation. Don't worry about the price of tomatoes and petrol. The fourth mantra that I'd like to put on the table is the power of compounding. Compounding, होता क्या है, is a very simple thing. आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हो, वो आपको हमेशा पूछेगा आपको ब्याज चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। आप जैसी एनुअल रेट लोगे आपको ब्याज दर बेटर मिलेगा, आप क्वार्टरली लोगे ब्याज गिर जाएगा। आप बोलोगे कि भाई मुझे ब्याज मत देना, आप उसको कंपाउंड करते जाना, योर रिटर्न विल बिकम इवन बेटर। ये इंसान को सब पहचानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं कोई गुरु नहीं हूं, ये है। और उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया बोला था। इट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो उसको समझता है वो कमाता है, वो जो उसको नहीं समझता वो भरता है। And always allow your investments to compound over a period of time. Do not try to jump out of them just because market चढ़ गया या market उतर गया। Do not make your investment decisions to get in and get out basis of markets, because you do not allow your investment to then compound. And let me give you a simple game here at this point on what is the true power of compounding. मान लीजिए कि आपका बच्चा आपको आके बोलता है कि मम्मी मुझे पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा बेटा मैं देती हूं आपको। कितना चाहिए आपको बच्चा? मम्मी मुझे आप पहली तारीख को 1 रुपया दीजिए, दूसरी तारीख को 2 रुपया, तीसरी तारीख को 4 रुपया। हर दिन मम्मी आप
पैसा डबल करते जाइए, पर 1 रुपया से ही शुरुआत कीजिए। आपको पता है 31 दिन में आपका बच्चा कितना कमाएगा पॉकेट मनी में? 10 लाख से 30 करोड़ से ज्यादा का मैं आपको अंदाजे का ऑप्शन देता हूं। एंड द ट्रू नंबर is not any of these. The true number is 107.4 crores. If you compound money double every day, the sum total of that at the end of 1 month will be 107.4 crores. That is what compounding is. So never get fooled if your child comes and tells you, please give me 1 rupee pocket money today and please double it every day from today. You will become bankrupt half the way itself. You will not survive the entire journey. And the same is true for your investments. Let me give you now real life examples about investment. मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब समझते हो SIP क्या होता है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए की SIP, एक फंड, ये उदाहरण के लिए है, मैं कोई फंड बेचने के लिए नहीं बात कर रहा हूं, ये उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए की SIP UTI के फ्लेक्सी कैप फंड में नवंबर 2005 में शुरू की थी। आपको ध्यान या याद होगा 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, और ये जो 3 साल में आपकी SIP जो 3,60,000 रुपया आपने डाला था, लगभग 15% से नेगेटिव होके द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वाज ओनली 2,86,000 रुपीज। मोस्ट इन्वेस्टर्स पैसे की जरूरत नहीं होती, बट डर के मारे वो अपना पैसा निकाल ले। जो निवेशक ने सोचा कि नहीं भैया रुको, ये तो लंबे अरसे का पैसा है, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये उतार चढ़ाव से मैं अफेक्ट नहीं होने वाला हूं, और यही आदमी ने अगर कंटिन्यू किया होता टिल 2010, ये देखिए 2 साल एक्स्ट्रा रुक के गया, जो 2 साल में SIP की एडिशनल 2,40,000 की किस्त लगी, 6 लाख का निवेश वैल्यू अब 10 लाख रुपए हो गए थे, और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 2,86,000 became 10,18,000 by only staying invested for another 2 years. And that is why you have to allow that compounding. And equity market में फिक्स डिपॉजिट की तरह कंपाउंडिंग कभी लीनियर नहीं आता है। आपको हर क्वार्टर हर साल में पैसा नहीं बनेगा, बट जब ऐसा बुरा वक्त आता है, मार्केट गिव्स यू एक्सेप्शनल रिटर्न्स इन शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। एंड यही पैसा आपने अगर 2010 से लेकर 2020 तक अगले 10 साल कंटिन्यू किया होता, you can see the market in April, because of the pandemic of COVID, had again fallen. 17,30,000 was just about double money at 34,84,000 with 9%. But if you kept your money for 1 year more, और 15 महीने और रुक के गए आप, यही 34 lakhs became 70 lakhs in a matter of 15 months. This is the power of compounding. अब आप सोचिए, जो निवेशक ने 10,000 रुपए की SIP फ्लेक्सी कैप में 2005 नवंबर से शुरू करके आज तक कंटिन्यू की होती, 18,70,000 invested is become 70,69,000 invested. He wouldn't have to worry about anything at all. You are well on the journey of making your first crore. This explains the same thing. मैं एक दूसरा उदाहरण, बहुत ही रिसेंट उदाहरण देता हूं आपको। 10,000 की SIP अप्रैल 2017 में शुरू की, 3 साल के बाद पैंडेमिक हुआ, 3,60,000 रुपए वापस आपके 3,02,000 रुपए बन गए थे। बहुत लोग डर के मार के मार्केट छोड़ के भाग गए। आज 15 महीने के बाद वही SIP कंटिन्यू की होते, 3,60,000 would have become 5 lakh of investment, but look at the 3,02,000 of value became almost 8 lakhs with a return of 22%.
And that is why time in the market is far more important than timing the market. टाइमिंग द मार्केट आप कभी अपने पकड़ में ला ही नहीं सकोगे. You can only give your investment a goal, a vision, and time, nothing else. And that is how you can make money. And let me now give you another mantra. क्योंकि आप सब निवेशक एनजे के साथ जुड़े हो, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भाई आप सब ने एसआईपी तो जरूर की होती. यही फंड का उदाहरण लेके आगे चलते हैं. 15 साल का वक्त देते हैं. अगर आपने पिछले 15 साल में यूटीआई फ्लेक्सी कैप की फंड में निवेश किया होता हर महीने 25,000, तो सालाना 3 लाख, मतलब 15 साल में आपने 45 लाख निवेश किया होता. यही 45 लाख आज के वैल्यू में 1.25 करोड़ बन गया होता विथ अ रिटर्न ऑफ 12.64%. ये सब समझते हैं लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट द थिंग दैट पीपल डोंट रिमेंबर एंड एग्जीक्यूट, इसके ये 15 साल में मेरी आमदनी तो हमेशा बढ़ती गई. मेरा हर साल इंक्रीमेंट होते गया. अगर मैंने डिसिप्लिन से मेरी जो एसआईपी थी वो भी मैंने टॉप अप की होती, तो अब उदाहरण में हम एक नया एंगल लाते हैं कि यही 15 साल में पहले साल में आपने हर महीने 25,000 निवेश किया और उसके बाद हर साल 5,000 बढ़ाते गए. तो दूसरे साल 13वां महीने में 25,000 के बदले में 30,000 किया. फिर 25वें महीने में तीसरे साल की शुरुआत में 30,000 के बदले में 35,000 किया. हर साल आप 5,000 बढ़ाते गए. तो इंस्टेड ऑफ 45 lakhs you would have invested 1 crore of rupees, but instead of making 1 crore in return, your return would have become 3.35 crores. And this is how you can simply plan your retirement. This is how you can simply plan your children's education, your children's marriage. You don't need to worry about timing the market. 15 साल में बहुत सारे गवर्नमेंट चेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर गए, लड़ाइयाँ हुई, स्कैम्स हुए. आपको एक ही चीज पे ध्यान रखना था कि भाई भैया मैंने मेरे 25,000 की एसआईपी की और हर साल वही 25,000 मैं 5,000 से बढ़ाते गया. दिस इज हाउ आई विल क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ. The only thing it needs is a little bit of money and a whole lot of discipline, nothing else. And जो मार्केट का रिटर्न आता है और जो निवेशक का रिटर्न बनता है, ये दो चीज में जो अंतर हमेशा दिखती है, अरे भाई मार्केट ने तो इतना बढ़िया रिटर्न दिया बट मेरा तो कोई रिटर्न नहीं बना, इज ओनली बिकॉज ऑफ द बिहेवियर गैप जो निवेशक के बिल्कुल कंट्रोल में है. मार्केट निवेशक के हाथ में या कंट्रोल में कभी नहीं रहता है. एक ही चीज रहती है निवेशक के हाथ में, और वो है वो अपने आप क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या है फॉर हिज इन्वेस्टमेंट्स. एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन योर बिहेवियर. Where are you focusing your investments? I'd just like to go back to the first slide and talk about what really matters. Put your family in front of you, क्योंकि आपका आपकी जिम्मेदारी और उनका हक एक बेहतर जिंदगी का है. What really matters is focus on building a portfolio through asset allocation. Don't try to time the market. Stay in the market at all times, because only then you will get the compounding effect. Inflation is in your lifestyle, it is not in the price of goods and commodities that you consume. Never allow lifestyle inflation to happen at the cost of investment. First do your investment and enjoy everything else in life. Of course you earn to enjoy life, but don't allow it to happen at the cost of investment. Power of compounding is the eighth wonder of the world. Allow time
to your investments, and that is where compounding comes into play. And सबसे बड़ा दुश्मन कंपाउंडिंग का होता है ह्यूमन इमोशन. लाभ, लालच, लाभ का लालच और गिरावट का डर, ये लालच और डर कंट्रोल में रखोगे, कंपाउंडिंग अपने आपके इन्वेस्टमेंट्स पे अपने आप होते जाएगा. I will close by just making one small comment about UTI, sorry, before I close, and that is to say that while you are focusing on your investments at UTI, we also focus on managing your money well for you. And in that direction, we have currently ongoing a UTI focused equity fund NFO. आपका रिलेशनशिप मैनेजर, आपका पार्टनर जो आपका एडवाइजर है, विल टॉक टू यू अबाउट इट सेपरेटली. आपको अगर पसंद आता है तो जरूर ये प्रोडक्ट में भी निवेश करना. बट दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप. आई विल रिक्वेस्ट, टेक प्लीज टेक द सिंपल मंत्रास ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड द टाइम टू डू इट इज नाउ. कल वक्त वापस गुजर जाएगा. एक्चुअली ये करने का वक्त, it was yesterday. Today is not too late. Tomorrow will definitely be out of control. Thank you very much. I will stop over here and happy to take questions from people in the audience. Thank you, Paisi sir, for the wonderful presentation and the thoughts that you share. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इन्वेस्टमेंट मंत्रास को शेयर किया, जो कि जिससे हमारे जो प्रोस्पेक्टिव और एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स है उनसे उनको उनका लाभ मिलेगा. आपने जैसे जो जो क्रक्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन वाज दैट स्टे इन्वेस्टेड एंड मेंटेन, जस्ट मेंटेन अ डिसिप्लिन. एक जो आपने डेटा शेयर किया कि अगर किसी ने 25,000 की SIP की है और 15 साल के लिए की है और हर साल उसने कुछ नहीं किया, अपनी आमदनी के अनुसार 5,000 रुपए अगर बढ़ाए हैं, तो 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाता है, विच इज अ वंडरफुल थॉट. आई थिंक ऑल आवर इन्वेस्टर शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो रेगुलरली करते हैं पर अपने इन्वेस्टर्स को बढ़ाने का जो कमिटमेंट है वो शायद नहीं करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो शायद प्रेजेंटेशन में सर ने शेयर की. हमारे साथ सर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आई विल जस्ट टेक वन बाय वन. आपने अपने NFO जो अभी आया हुआ है उसके बारे में बताया, तो थोड़ा सर अगर उसके बारे में और बता सकें कि भाई ये स्ट्रेटेजी क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेक्सी कैप, थोड़ा अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा सर. किसी ने पूछा है. जी जरूर. तो फंड जैसे कि मैंने बताया, उसका नाम है UTI फोकस्ड इक्विटी फंड. सेबी की एक कैटेगरी दी गई है इक्विटी फंड्स में, जो सेबी परमिट करता है, अलाउ करता है कि भाई आप ये कैटेगरी में फंड लॉन्च कर सकते हो. सेबी के नियम रहते हैं कि भाई ये कैटेगरी में आप फंड को कैसे मैनेज करना चाहिए. पहली बात, ये कैटेगरी में आप लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, ग्रोथ कुछ भी खरीद सकते हो. उसमें कोई अनुमति या पाबंदी नहीं है. अनुमति है कुछ भी लेने के लिए, बट एक ही पाबंदी है कि ये पोर्टफोलियो, जैसे कि नाम कहता है फोकस्ड, कैनॉट बाय मोर देन 30 स्टॉक्स. ओके, you have to restrict yourself in 30 stocks itself. When you look at a flexi cap fund, it will normally have about 50 to 60 stocks in it. So it is a lot more diversified. Flexi cap is a lot more diversified than a focused equity fund will be. The second thing is ke, okay, then what is focused equity fund going to buy? Bhale 30 stock hi ho. We are going to concentrate on 3 large themes. One is, sustainable business ideas, where we are able to find value over a long period of time and take examples. You have many of them where wealth has been created over long sustainable businesses. There are many in the banking industry that have created phenomenal wealth.
There are people in the pharma industry, phenomenal value for investors. There is in the FMCG space. So this fund will have the ability to take slightly more concentrated bets across. The second area we will focus on is on turnaround cases. And there are many companies which go out of favor because of business cycles. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, सीमेंट बनाने वाली कंपनी, ऐसा नहीं है कि हर दिन, हर सीजन या हर इकोनॉमिक माहौल में दे सी बूमिंग बिजनेसेस. ओके, we will be focusing on trying to bring in companies where we think there is a great turnaround story as far as these stocks go. Okay, the portfolio will be slightly more risky in that sense when compared to FlexiCap because of the fact that it is holding, lesser number of stocks. ये फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रहेंगे सुधांशु अस्थाना. सुधांशु जी भी 20 साल से ज्यादा फंड मैनेजर रह चुके हैं पहले, और उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ऑफ मैनेजिंग वेरी स्मॉल टाइट पोर्टफोलियोज. पहले उन्होंने एक्सिस फोकस 25 फंड बहुत सालों के लिए चलाया था. फिर उन्होंने अपने खुद का पीएमएस चालू किया था. पीएमएस तो और भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, 12 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो चलाते थे. सो सुधांशु अस्थाना हैज जॉइंड अस 3 months बैक. वेट्री जी, जो हमारे वेट्री सुब्रमण्यम, जो हमारे सीआईओ है, उनके टीम में उनके साथ काम करके ये फंड मैनेज करेंगे. ये फंड का एनएफओ 4th of August से लेके अगस्त की 18 तारीख तक ऑन रहेगा. राइट सर. दूसरा सवाल मेरा एनएफओ से ही जुड़ा हुआ है. तो किसी के, जैसे कि आपने बताया कि ये स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल है ऑन द हायर साइड, तो साथ में जैसे रिस्क बढ़ता है तो प्रॉफिट का प्रपोजिशन भी बढ़ता है. तो आप किसी के पोर्टफोलियो में ये स्ट्रेटेजी का क्या एलोकेशन सजेस्ट करते हैं सर, कि किसी के पोर्टफोलियो में एक फोकस्ड इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? सो आई वुड से कि मान लीजिए निवेशक के पास 100 रुपया है और वो बोलता है कि भाई आई एम 42 years of age, I'd like to have 70% इक्विटी, 30% डेट. अब वो 70% को हमें एलोकेट करना है, एंड आई वांट टू पुट सम मनी इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि ये फंड विल इन्वेस्ट अक्रॉस, बट लार्जली इट विल बी large cap and mid cap. Because we are taking high concentration, it will have very little small cap in it. Okay, I would recommend from that 70 rupees that you have for equity, between 10 to 12% of that money can go to a fund which carries a focused style of investing. That would be my recommendation. राइट सर. दूसरा एक क्वेश्चन सर ये है कि जब अभी बाजार में सर तेजी है तो बहुत सारे आईपीओस भी आए हुए हैं, सिमिलरली बहुत सारे एनएफओस भी लाइंड अप हैं. So what to choose? Right. So I will go back, Kakkarji, to what I presented. And on slide 2, one mantra I put over there is, first thing is be selfish. Okay. I said you have to choose yourself first before anything else. Okay. I will, just because I have an NFO coming, I will not tell you कि अरे सर नहीं अच्छा टाइम है मार्केट में पैसा लगाने के लिए, इसके लिए आपको लगाना चाहिए. No, 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 no. Those mantras are true and you have to keep that mantra in life. Okay. The question comes only one. Because the market is high, आपको मार्केट से डर लेके भागना चाहिए मार्केट से? सवाल, the answer is no. You should not be doing that. Clearly that cannot be your strategy. आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा. मैंने क्या बोला था? एसेट एलोकेशन, इक्विटी करना चाहिए, कमोडिटी करना चाहिए, रियल एस्टेट, जो आपको समझ में आई है बिल्कुल करना चाहिए, बट सही प्रोपोर्शन में करना चाहिए. करेक्ट. अगेन, शुड यू डू आईपीओ? द आंसर इज यस. प्लीज कीजिए, आपको समझ में आता है, प्लीज कीजिए.
एनएफओ करना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में फोकस्ड इक्विटी फंड का कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है. I don't have 10-12% allocation in the focused equity category. Should I buy UTI focused equity fund? The answer is yes. Are they good fund managers? The answer is yes. Buy it from a selfish point of view, not from a market point of view. That's point number one. The second point I'll make is that market is also at a high level. One is not saying कि भाई आपको पूरा पैसा आज ही लगा दीजिए. सब एनजे के निवेशक एसआईपी निवेशक रहते हैं. हम ये भी बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा आपको मान लीजिए कि आपको 100 रुपया लगाना है फोकस कैटेगरी में. ओके, आप 50 रुपया लमसम लगाइए, 50 रुपया एसटीपी कीजिए अगले 6 साल के 6 महीने के अंदर. धीरे धीरे वो बाकी के 50 रुपए लगाते जाइए. यू डोंट हैव टू बी अ हरी टू इन्वेस्ट टुडे, बट बी सेल्फिश व्हेन यू आर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. राइट, थैंक यू सर. एक जो हर प्रेजेंटेशन में सर ये डिस्कस होता है कि भाई इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. सो हाउ डू यू डिसाइड दिस टर्म? I'll go back to slide 1 of my presentation. What is long term for me? And I hope people can understand with a real life example. Long term for me is my family. There is no other definition of long term in my life. Okay. 15 years back, my daughter was 2 years old. Okay. Right. That's all. And what I knew, okay, boss, when she reaches 20 or 22, she may want to do a foreign education. Correct. मैं उसका बाप हूं. ये मेरी जिम्मेदारी है कि भाई अगर बेटी डिजर्विंग हो और बाप फेलियर हो कि भाई बेटा तू एडमिशन तो लेके आई बट फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. दैट इज द मोस्ट शेमफुल थिंग दैट अ फादर कैन फेस इन लाइफ. You would agree? Yes. So then the question for me is, what is long term for me? Long term is my daughter's education. I am Right. 48 years of age. I will retire at 60. I have to live from 60 to maybe 65, 70, 75. I have to plan for that retirement. What is long term for me? My retirement. Nothing else is long term. Everything else is only a matter of time and it's irrelevant. It's irrelevant in my scheme of things. How is 3 years or 5 years relevant to me? Because 15 years back, my daughter would have moved only from age 2 to age 7 in 5 years. That is थोड़ी ना long term मेरे लिए. My son is 14. Right. He will probably, ask for a foreign education maybe when he's 21 or 22. For me, long term for my son is 8 years. That's all it is. That is my definition of long term, not time. Right. So once your goal is fixed, that is the term for investment, and based on that, maybe you can then choose where to invest. बिल्कुल. तो कक्कर जी, मेरा यही, अगर कोई मुझे पूछे ना कि आप अपना पोर्टफोलियो में क्या करते हो, मैं आपको वही बोलूंगा कि भैया मेरे पास हर महीने तनख्वाह आती है, सालाना एक बार बोनस आता है, मेरा ईएमआई कटता है घर के लिए. पहले मैं एसआईपी के द्वारा निवेश करता हूं. जब जब मेरी तनख्वाह बढ़ते जाती है मैं एसआईपी बढ़ाते जाता हूं. जब बोनस आता है उसमें से बीवी को गिफ्ट दे दिया, बच्चों को तोहफे दे दिए, हॉलिडे पे चले गए. और फिर एंड आई ऑल्सो हैव लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. नॉट दैट आई डोंट हैव लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इन माय फैमिली. आई टेक केयर ऑफ दैट, बट आई डोंट अलाउ दैट टू कम बाय सेइंग कि अच्छा चलो ये साल बोनस को पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं, निवेश नहीं करेंगे. चलो ये एसआईपी 3 बंद कर देते हैं क्योंकि अगले 3 महीने में बहुत खर्चे होने वाले. दैट आई विल नॉट अलाउ टू डू. Life is so simple. Investing is a very simple subject but requires very strong discipline. That's all. Right. दूसरा सर, ये हर प्रेजेंटेशन में ये पूछा जा रहा है कि सर लमसम करें या एसआईपी करें. मेरा जवाब उसका यही है, निवेश कीजिए. ओके, एंड आई विल गिव यू अगेन एन एग्जांपल. आई विल गिव यू अगेन माय पर्सनल एग्जांपल. आई विल गिव यू माय रियल लाइफ एग्जांपल. मैं पिछले 27 साल से काम करते आ रहा हूं.
ऐसा कोई 1 2 3 साल होंगे 27 साल में जब बोनस नहीं मिला क्योंकि वातावरण बहुत खराब था, बट एवरी ईयर यू गॉट बोनस, करेक्ट। अब 27 साल में जितनी भी बार बोनस आया और मैंने वो लमसम पैसा लेके निवेश कर दिया, वॉज एन एनुअल एसआईपी इंस्टॉलमेंट फॉर मी। जब आप पिछले 25 26 साल देखोगे, भैया मैंने हर साल हर महीने भी एसआईपी की और हर साल एक बड़ा किश्त भी लगाया मैंने। अब जब आप 1 साल देखोगे आप बोलोगे अरे बाबा वो तो लमसम हो गया। मैं बोलता हूं भैया अगेन आपकी आपकी टाइम पर्सपेक्टिव इज वेरी शॉर्ट टर्म। अगर 25 साल बोनस आया तो वो तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हुआ एसआईपी का, लमसम कहां से हुआ वो। Right. So the way I look at it is कि keep that perspective of time. What is your objective of investment? That lump sum will not look like lump sum for you. फिर भी आपको बहुत डर लगता है. There are 3 strategies you should always adopt. One is SIP at all points of time. आपको मार्केट से डर लग रहा है, वेरी गुड, आप एसटीपी कीजिए, जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। आप वही पैसा कोई लिक्विड फंड में लगाइए और वहां से अगले 6 महीने में, 12 महीने में, 6 किस्त या 12 किस्त में वहां से ट्रांसफर करते जाइए। बट एक्चुअल बिहेवियर में निवेशक क्या करते हैं, क्योंकि डर के मारे रहते हैं, वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में रहेगा, वो बैंक अकाउंट बीवी के नजर में आएगा और वो पैसा खर्चा हो जाएगा जो निवेश होना चाहिए था। That's my subject of saying whether you should do lump sum or SIP. I think SIP, STP, lump sum, but in the right perspective, even lump sum is an annual SIP, nothing else. राइट सर। एक हमारे निवेशक ने पूछा है कि सर SWP के बारे में थोड़ा समझाएं, और SWP में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है क्या? जी बिल्कुल। सो अगर मैं आपको जरूरत होगी, वो कहां से मैं पैदा करूंगा। दूसरा आप पूछोगे कि क्या रिटायरमेंट में आप सब पैसा इक्विटी से निकाल के आप सिर्फ फिक्स्ड इनकम में लगा दोगे क्या? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले तो आई हैव टू बीट इन्फ्लेशन एंड आई हैव टू बीट मैनेज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सेकेंडली, आई वांट माय कैपिटल टू ग्रो। आफ्टर इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस आई विल ओनली लूज माय principal value of my money. So I will put money into equity. I will keep it for really long term. Okay. And I will withdraw from there as an SWP rather than not invest in equity. So let me give you another perspective in this. Okay. मेरे पिताजी, may his soul rest in peace, passed away 2 years back. He was a big equity investor. इक्विटी से उनको डिविडेंड आता था। म्यूचुअल फंड से भी आपको डिविडेंड आ सकता है या आप एसडब्ल्यू पे कर सकते हो। बट वो फिक्स डिपॉजिट, इवन इन हिज रिटायरमेंट ही हैड नेवर डन फिक्स डिपॉजिट्स, बिकॉज उनका बोलना क्या था कि भैया जो मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है वो मेरा लेगेसी है, दैट इज रियली लॉन्ग टर्म। रिटायरमेंट में ही यूज्ड टू लुक एट इट एंड से कि ये तो मैं मेरे बच्चों को छोड़ो, आई वांट टू गिव इट टू माय ग्रैंड चिल्ड्रन, सो दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर लॉन्ग टर्म। अ रिटायर्ड पर्सन इज सेइंग दैट। और वहां से जो आमदनी आती थी डिविडेंड के द्वारा, ही वॉज वेरी हैप्पी लिविंग इन दैट। उनको कोई मतलब बड़ी इच्छाएं नहीं थी कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, और जो भी करना था वॉज वेल टेकन केयर ऑफ फ्रॉम दैट। सो इवन इन रिटायरमेंट द पॉइंट इज you should keep that perspective के I cannot allow inflation to make my corpus negative. I have to allow investment in equity such that my capital will continue to grow, and give your retirement corpus a long term view. Manage your money through SWP, but keep it where it can grow and make that the legacy that you will leave behind. राइट सर। एक क्वेश्चन यूलिप पे आया है सर कि यूलिप को एज ए प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए या हमें उसे एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना चाहिए यूलिप प्लान को? So I am a more simple man, and जैसे कि मैंने बताया, there is a place for everything in life. So मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूं।
मैंने कभी लाइफ में यूलिप खरीदी नहीं है, क्योंकि मैं निवेश एसआईपी में करता हूं, निवेश मेरा बोनस हर साल करता हूं, और मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस कवर करने के लिए टर्म प्लान है, और मेडिकल इंश्योरेंस कवर करने के लिए अलग मेडिकल प्लान है. इफ आई वॉज एन इनडिसिप्लिन्ड पर्सन, अगर मेरी जिंदगी में मैं खुद डिसिप्लिन नहीं कर पाता, तो फिर मैं एक बंडल्ड प्रोडक्ट लेता जहां पर मेरे इन्वेस्टमेंट भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, बट देन इट इज हाईली इनएफिशिएंट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, and you will lose value of money over time because of your indiscipline, nothing else. So it is not bad, but it is meant for people who are indisciplined in their investment approach. If you are disciplined, you will buy separate products on your own. राइट. दूसरा सर जो क्वेश्चन है, और बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो अभी डिस्कशन में है कि भाई एट दिस लेवल ऑफ मार्केट व्हाट डू यू सजेस्ट, should one invest or not? Rather, you have already discussed on that point, but the question is there, sir. Sure. So I will say, मुझे भी मार्केट ये लेवल पे डर लगता है. मुझे भी, मैं देखता हूँ मेरा कॉर्पस और बोलता हूँ कि भैया मेरा कॉर्पस एक्स मैंने निवेश किया पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ, उससे कहीं गुना हो गया है वो. मार्केट अगर 25% गिर जाएगा, अरे बाप रे, आई हैव टू अगेन स्टार्ट दैट जर्नी ऑल ओवर अगेन. So fresh money, I will give you a perspective. I will not stop a single SIP of mine ever. Okay. ये साल जो मुझे बोनस आया था, I did not do a lump sum investment. I did a 12-month STP. मैंने वही पैसा लिक्विड में लगा दिया, और जो मेरा सालाना किस्त जो लगता है उसको मैंने 12 टुकड़े में और तोड़ दिया, क्योंकि बाय द टाइम 12 installments of my STP are over, I hopefully will get another bonus. So today I am trying to spread my entry into the markets. Am I worried about the market level? The answer is yes, sir. It is not a level where I can say, oh, I am absolutely comfortable, बहुत cheap है, we should be jumping. Returns बहुत बढ़िया है. Returns देखोगे तो बहुत मन करेगा कि सब बेच के मैं इक्विटी ले लूं. But that's not the sensible thing to do. Stick to your plan. That's all. राइट सर. एक सवाल ये आया है कि सर, जैसे बहुत सारे हमारे साथ सर नए इन्वेस्टर्स हैं इस सेशन में, जो शायद अभी पहली बार इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेंगे, तो उनके मन में एक कंफ्यूजन है कि भाई शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा या थ्रू म्यूचुअल फंड करें, और अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम जाते हैं तो जो फंड मैनेजर है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या लाभ दे पाते हैं. सो अगर सिंपल है मेरे हिसाब से, इट इज लाइक के आपका बच्चा है, ठीक है, अब भी उसने खाना शुरू किया है. ओके. क्या आप उसको सीधा तीखी मिर्ची वाला खाना खिलाओगे क्या कल सुबह से? नहीं ना. आप बोलोगे भाई पहले तो सब मैश करके, नो स्पाइसेस, नो मसाला, उसका खाना शुरू करेंगे. फिर धीरे धीरे यू विल कीप इम्प्रूविंग इट. देन द चाइल्ड हिमसेल्फ विल कम एंड से कि मुझे मीठा पसंद है, मुझे तीखा पसंद है, मैं तीखा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं. इफ अ एब्सोल्यूट न्यू इन्वेस्टर इज कमिंग एंड सेइंग क्या मैं डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करूं, मेरे लिए वही है कि बच्चा आज पहले तो खाना चाहता है, बट सीधा तीखा खाना या तो उसे बहुत मजा आएगा, या तो फिर ऐसे रोएगा और ऐसा पेट खराब होगा कि आप खाने को जिंदगी भर उसके बाद गाली दोगे. My recommendation to any new investor would be, please come through a mutual fund. Whether it is UTI, great. Any other fund is also great. No problem. But please come through the SIP route. And please do not try direct equity unless and until you have the skill to do it.
राइट, वेल एक्सप्लेन सर। एक सवाल ये है कि सर, बड़े बेसिक से सवाल है कि भाई, मुझे कितने की एसआईपी करनी चाहिए, या मुझे कौन सा बेस्ट फंड है वो मुझे चुनना चाहिए, मुझे लार्ज कैप में जाना चाहिए या फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए, या जैसे कि सजेस्टेड, लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप अपनी रिस्क एपिटाइट के अनुसार निवेश कीजिए। तो ये रिस्क एपिटाइट को मैं कैसे समझूं? और हालांकि ये सभी जो सवाल है इसके लिए हमारे निवेशकों के साथ उनके सलाहकार हैं जो इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सर एक रोल ऑफ एडवाइजर और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अगर कुछ बताते सर आप। सो ये सब जो सवाल पूछे गए यहाँ पर ना, इज लाइक के आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को बोलते हो, डॉक्टर मेरे पेट में दर्द नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं है। डॉक्टर बोलता है भाई तुम फिर आए क्यों? ओके, बट वी नेवर गो टू अ डॉक्टर व्हेन वी आर हेल्दी। वी ओनली गो टू अ डॉक्टर व्हेन वी फॉल सिक। यू रियलाइज दैट, राइट? वी नेवर गो टू अ डॉक्टर एंड से सर टू रिमेन हेल्दी, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे आप बताइए कि मुझे हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। राइट। वी नेवर गो टू अ डॉक्टर फॉर दैट। The question you have to ask your financial advisor is, if I have to achieve my financial goals, you are my doctor. I will not come to you when I am sick. Go to your financial doctor when you are healthy and say कि मुझे तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर बोलेगा आपको कि भाई सिगरेट तो बिल्कुल मत पीना, दारू बिल्कुल कम पीना, तेल वाला खाना, तला हुआ खाना कम खाइए, सुबह उठ के 4 किलोमीटर भागिए, 10 किलोमीटर चलिए। द सेम इज विथ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, डोंट वेट टू बिकम सिक, but learn how to remain healthy. And that is where the financial doctor comes into play. That is the role of the financial doctor. Now, because every human body is different, every doctor will prescribe you also a different path to a healthy lifestyle. Correct? The same राइट। way, the financial doctor will work with you and say कि सर आप तो शादीशुदा नहीं हो, मतलब आपकी तकलीफें बिल्कुल नहीं है, सिर्फ शादीशुदा लोगों को तकलीफें आती है। तो आपको जो सवाल था कि मुझे ईएमआई, ये एसआईपी में कितना निवेश करना चाहिए, देन आई वुड राइट। से कि बॉस, फ्रॉम योर टेक होम सैलरी आफ्टर टैक्सेस you should be investing at least 60% of your money in SIP and controlling your expenses in the remaining 40%. But if you're a married man with an EMI, with children, okay, my answer would be different. And that is the role of the financial doctor, to make that plan for you such that you will never be financially sick. You will remain financially healthy always. राइट। दूसरा एक सर, अभी जो एक टॉपिक है जो बहुत डिस्कशन में है, क्रिप्टो करेंसी, तो उसके बारे में कुछ बताते। और किसी ने पूछा है कि व्हेन डू यू सी ए क्रिप्टो बीइंग अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? सर, मैंने हाथ जोड़ा है क्योंकि मुझे ना समझ में आता है क्रिप्टो। ओके, ना मैंने कभी पैसा खुद लगाया है क्रिप्टो में। दो वजह से, क्योंकि पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, और जहां पर मुझे समझ में नहीं आता है, यू नो जो भी रिटर्न होने दो, बट मैं रिस्क उठाने को तैयार नहीं हूं। ओके, सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज दैट crypto, you have to be careful of regulation around crypto. So for a long time, RBI had banned any investments in crypto. The government is not in favor of it, but the courts overruled that and said that no, in a country like India, people should be allowed to do what they wish to do as long as they understand the risk. Okay, today there are crypto exchange platforms जहां पर आप जाके खरीद सकते हो, थोड़े पैसे के लिए भी आप जाके निवेश कर सकते हो। आपको इतनी ही उत्सुकता है, इतनी ही बेचैनी है, मेरा बोलना इतना ही रहेगा कि थोड़ा पैसा लेके ट्राई कीजिए।
Don't lose your sleep over it. Okay. Do I have a view on it? I don't, because I don't understand it. Right. So don't do what you don't understand. I don't do what I don't understand, bhai. Bilkul. So thank you very much, sir. You have addressed almost all the questions that were on the board. There were some repetitive and common questions which we have not taken. And I think मेरे हिसाब से आप अपने सलाहकार से उन बेसिक क्वेश्चंस के जवाब ले सकते हैं और उनसे अगर आप कंसल्ट करेंगे तो इनके जवाब आपको वो बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से दे पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पेशी सर का कि उन्होंने आज अपनी उपस्थिति दी और इन्वेस्टमेंट मंत्रास को शेयर किया बड़े ही सरल भाषा में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी एडवाइजर्स का जिन्होंने आज अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है और आज सैटरडे इवनिंग को उन्होंने अपना वक्त दिया। हम हर सैटरडे ये कार्यक्रम हमारे यहाँ रेगुलरली होता है और उसमें पेशी सर जैसे एमिनेंट स्पीकर आके अपने अनुभव को शेयर करते हैं। तो मैं सभी इन्वेस्टर्स को याद दिलाना चाहूँगा कि हर सैटरडे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ जिसमें वेरियस टॉपिक्स पे चर्चा होती है और आप उस बहाने अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। बिफोर एंडिंग जस्ट पेशी सर इफ यू कैन ऐड सम क्लोजिंग रिमार्क्स। I think I have said enough, and I will just repeat the exact same thing because मेरा truly मानना है कि एक ही चीज के लिए निवेश कीजिए और वो है अपने आप के लिए. Okay, be selfish, but when I say be selfish means only look at one thing. मेरी जरूरतें क्या है, वो कब आने वाली है और वो मायने रखते हुए आप निवेश कीजिए. आपको कभी मार्केट की चिंता होगी नहीं लाइफ में एट ऑल एवर. दैट्स ऑल माय मंत्रा वुड बी. SIP is like the bloodline of investment. You have to do SIPs, and the cherry or the icing on the cake of an SIP is the step up. बहुत कम लोग करते हैं. उनको लगता है कि भाई मैंने 2000 रुपए की SIP की तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी. ऐसा नहीं है. ओके, 2000 रुपए की SIP आप करोगे तो आपको लूना बाइक ही मिलेगी. आपको अगर मर्सिडीज कार चलानी है तो आपको 25,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी, 5,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी. डोंट ट्रीट SIP कि अरे भाई चलो छोड़ो यार, वो चल रहा है कुछ 1000, 2000, 3000 रुपए के लिए. It will not create wealth. To create wealth, it requires some sum of money. It doesn't require 20 lakhs to create wealth, but it needs 15, 20,000 rupees a month to create that 3-5 crore portfolio in 15 and 20 years. And that would be my last closing remark to investors. राइट, थैंक यू वेरी मच. तो क्लोजिंग रिमार्क में साहब ने कहा है कि फॉर्मेलिटी मत कीजिए इन्वेस्टमेंट के साथ में. फॉर्मेलिटी करेंगे तो शायद वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, वेल्थ भी आपके साथ फॉर्मेलिटी ही करेगी फिर. तो थैंक यू सो मच सर. Thank you very much, everyone. Have a good evening and a great weekend. And last of all, please be safe. Just because you may be vaccinated and the environment is opening up and looking good, please don't take things lightly. Thank you and take care. Bye bye. Bye sir. Thank you very much sir.